Alright, so let's start with question number 10. कल हमने previous CET के first 9 questions देखे थे. So let's start with next question 10. 2018 का question है ये. The expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin plane sheet is. So if you remember, आपने एक thin sheet के लिए you had a thin sheet which had certain charge, positive charge होगा या negative charge होगा doesn't matter really. इस पे जो surface charge density था वो था sigma, तो surface charge density was sigma, मतलब how much charge is there per unit area. So due to this sheet, electric field at a point near to the sheet was given by E equal to sigma by 2 epsilon 0, right? Correct? अब ये P पॉइंट आपने थोड़ा और पास में ले लिया होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता. ये P पॉइंट आपने थोड़ा सा दूर ले लिया होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता बेसिकली. तो ऑप्शन नंबर ए, independent of distance, D. खत्म. Next question, 11 number. A series combination of N1 capacitors, each of capacity C1, is charged to a potential difference 3 volt. Another parallel combination of N2 capacitors, each of capacity C2, is charged to potential difference V volt. The total energy stored in both the combination is the same. The value of C1 in terms of C2 is. Easy question है. आपको बोला है कि आपके पास C1 कैपेसिटेंस के N1 कैपेसिटर्स है. So you have case 1, you have total N1 number of capacitors with capacity C1. So on so forth. So this is capacity C1, 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 C1. ऐसे आपके पास N1 है total. तो आपको पता है when you connect capacitors in series, तो equivalent capacity is C1 by total number N1. क्योंकि ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर नहीं है. ये डिफरेंस पता होना चाहिए. रेजिस्टेंसेस इन सीरीज का इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और कैपेसिटर्स इन सीरीज का इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 so on so forth. तो अगर सारे के सारे कैपेसिटेंस सेम है तो C N by C, तो C इक्विवेलेंट इज C by N. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है. तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए, राइट? गुड. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? आई विल डिनोट इट बाय CS बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन था. एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन, इफ यू रिमेंबर, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा एनर्जी स्टोर का, दैट इज 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CSV स्क्वायर. ओके, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ही है ये, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर. तो आपको चाहिए तो आप U से डिनोट करो, डजंट मैटर इफ यू आर राइटिंग E फॉर एनर्जी और U फॉर एनर्जी, ठीक है? ओके, दिस इज 1/2. CS is C1 by N1. V is 3 volt in this case. उन्होंने बोला है, ओके, ये 3 वोल्ट है, 3V है. आपको 3 वोल्ट बोलना है, ठीक है, 3V बोलना है तो भी ठीक है, डजंट मैटर. ओके, तो 3V लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में V कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 1/2 C1 by N1 9V square. Okay, this is what you are going to have, right?
ये आ गया आपका यूएस, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स इन पैरेलल अगर होंगे, so if I have n capacitors, each of capacity C2 in parallel, so I have something like this. ये C2 कैपेसिटी है इसका, और हमारे पास ऐसे टोटल N2 है। टोटल N2 नंबर है हमारे पास। तो आपको पता है इक्विवेलेंट इन दिस केस इज N2 into C2, क्योंकि when you connect n capacitors in parallel, total capacity equivalent capacity is n into C, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज सिंपल केस, ओके। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस विल बी हाफ Cp square V square, नॉट Cp square, Cpv square, हाफ Cv square होता है एनर्जी, राइट। तो दिस इज हाफ N2C2, और V तो V ही है, V square। This is equation number 2. So energy stored in parallel combination is half N2C2V square, equation number 2. Okay, but given condition के according, but given condition is, उन्होंने बोला है कि energy stored are the same, तो US equal to UP. US is energy stored in series is half C1 by N1 9V square. This is half N2 C2 V square. V square गया, हाफ हाफ गया, ओके। आपको बोला है वैल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ C2, मतलब आपको C1 का इक्वेशन चाहिए था, दैट्स इट। they were asking you what is the equation of C1, that's all they're asking you. So you will have C1 equal to N1 N2 C2, okay, right, by 9। ऐसा कुछ है क्या हमारे पास? N1 N2 C2 by 9, N1 N2 C2 by 9, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। दैट्स ऑल यू हैव, ओके। तो ऐसा सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन था, नॉट रियली डिफिकल्ट। अगला क्वेश्चन, when three capacitors of equal capacities are connected in parallel, you have three capacitors of equal capacities which are connected in parallel, okay, and one of the same capacity is connected in series with its combination. The resultant capacity is 3.75 microfarad. The capacity of each capacitor is, आपके पास three capacitors है। I will just copy this diagram. You have three capacitors of equal capacities connected in parallel, मतलब something like this, ओके। अब आगे आपको बोला है कि इस कॉम्बिनेशन को एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है इन सीरीज, so there is one more capacitor connected in series to this combination, okay। तो मान लो ऐसा है, यहाँ पे कैपेसिटर है, टोटल मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको बोला है 3.75 माइक्रोफैराड। देन व्हाट इज द कैपेसिटी C ऑफ ईच? इजी है, एज यू नो कि तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, मतलब दिस कैन बी रिटन एज C प्लस C प्लस 3C, है ना, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है। सो ये जो डायग्राम है ये ऐसा मॉडिफाई हो जाएगा, तो यू विल हैव 3C here and a C here, so you have 3C capacity
and C capacity over here. Okay, अब आपको पता है कि total equivalent these two are in series, तो 1 upon C equivalent is 1 upon 3C plus 1 upon C, तो 1 upon C equivalent is C plus 3C by 3C square. इसका मतलब आपको मिल गया 4C by 3C square, cancel, therefore आपको मिल गया C equivalent equal to 3C by 4, but C equivalent आपको बोला है 3.5 microfarad. Okay, so 3.75 microfarad, but given condition is C equivalent is 3.75 microfarad. So therefore you will have 3.75 microfarad equal to 3C by 4, right? तो इसको solve करो, just solve this and you will get what is the value of C, and it is pretty simple thing. Solve करना है इसको, बहुत simple है, ये 1 जा और ये 25 जा 1.25. ओके गुड, तो ऐसा आएगा ये. ऑलराइट, देन 1.25 into 4 इट इज 5 इन टोटल, तो C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 माइक्रोफैरड. 5 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर ए. तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 2017. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी है. अगला क्वेश्चन, टू parallel plate air capacitors of same capacity C are connected in series to a battery of EMF E. You have two parallel plate capacitors. You have two parallel plate capacitors. Something like this. Two parallel plate air capacitors of same capacity C are connected in series to a battery of EMF E. So these two are connected to a battery of EMF E. ऐसा connection है. Here you have a battery plus minus E. Okay, C and C. Then one of the capacitors is completely filled with dielectric material of constant K. The change in effective capacity of the series combination is. तो ऐसा है, ये इनिशियल केस था. केस नंबर 2 में, फाइनल केस में क्या किया है, दोनों में से किसी भी एक को, one of these is filled with dielectric slab. ओके, तो इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया. वन ऑफ दीज इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स. ओके, तो मान लो ऐसा है ये. गुड. नाउ द चेंज इन पूछा है आपको, ये नहीं पूछा व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी. चेंज इन मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू निकाल लो. टू कैपेसिटर्स इन सीरीज. सीरीज में यू शुड एग्जैक्टली नो कि क्या होगा. यहाँ पे होगा 1 अपॉन C 1 इक्वल टू 1 by C plus 1 by C, राइट. सो ऑफ कोर्स यू नो दिस इज C1 इक्वल टू C by 2. तो ये C by 2 आने वाला है. यू आर गोइंग टू गेट दिस एज C by 2. ओके, अब इतना हो गया. अब सेकेंड केस में जब आपने एक को फिल कर दिया, आपको पता होना चाहिए जब कोई भी एक कैपेसिटर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फिल कर दिया तो कैपेसिटी बिकम्स K into C टाइम्स ऑफ एयर. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो पहले अगर कैपेसिटी C था तो अभी कैपेसिटी KC हो जाएगा उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का. तो ये बेसिक चीजें you have to know, क्योंकि क्वेश्चन इज नथिंग, इट इज इजी, बट ऑफ कोर्स बेसिक्स.
1/C2 इज 1/Kc। ये K क्यों आया? क्योंकि एयर में कैपेसिटी C थी, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया तो K टाइम्स ऑफ C होता है। ये हमने बहुत बार देखा है इन थियरी आल्सो, इन प्रीवियस न्यूमेरिकल्स आल्सो, बाय C। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 1/C कॉमन निकाल लो, 1/K + 1, so therefore you will have 1/C2 equal to 1/C 1 + K/K, which means C2 is equal to Kc/K + 1। करेक्ट, ये आ गया फाइनल कैपेसिटी, ये है इनिशियल कैपेसिटी। तो चेंज पूछा है आपको, therefore change in effective capacity is C2 minus C1, which is Kc/K + 1 minus C/2। गुड गुड। तो क्या क्या कॉमन निकलता है निकालो, सिंप्लीफाई करो। यहां से आप सिर्फ C कॉमन निकाल सकते हो, यू कैन जस्ट टेक आउट C कॉमन, देन यहाँ पे बचेगा K/K + 1 माइनस हाफ। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा आपका 2K - K + 1 अपॉन 2K + 1। तो दिस विल बी C into 2K - K - 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ K + 1। तो ये आ जाएगा C into 2K - K is K - 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ K + 1। तो ये मिल गया आपको C/2 K - 1 upon K + 1। So this is a change in capacity, C/2 K - 1 upon K + 1, option number A। Good, good। Now मेथड तो सिंपल था सॉल्व करने का, पहले इफेक्टिव कैपेसिटी निकाल लिया, फिर दूसरे केस में निकाल लिया, फॉर्मूला मिल गया। अब रियल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मान लो अगर आपको ऐसा बोला होता, two parallel plate air capacitors of same capacity C are connected in series to a battery of EMF E. Then one of the capacitors is filled with a dielectric material of constant 5, मतलब K की वैल्यू 5 दे दी। और अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद आ रहा है, हमने कहीं सीखा है, तो आप बोलोगे C/2 5 - 1 upon 5 + 1, सिर्फ K की जगह पे 5 डाला, तो C/2 4/6, 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा C/3। आ गया आंसर, खत्म। एक चेंज है, दिस इज चेंज इन इफेक्टिव कैपेसिटी। गुड। अगर आपको C की भी वैल्यू दी होती, बोला होता C इज 9 माइक्रोफैरड, मतलब आपको बोला होता टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटी 9 माइक्रोफैरड, मतलब C की वैल्यू भी देके रखी है। व्हाट इज द टोटल चेंज नाउ? Total change is 9/3 microfarad is the total change। Okay, so this is how you are supposed to solve such questions। अगला question is a joke। A parallel plate air capacitors has capacity C farad, potential V volt, energy E joule। When the gap between the plates is completely filled with the dielectric, both V and E increase, both V and D decrease, V decreases, E increases, V increases, D decreases। तो आपको याद होगा that जब हमने डायलेक्ट्रिक्स सीखा था, and of course when we actually studied कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर चेंज कैसे होता है व्हेन यू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इफ यू रिमेंबर, हमने पोलराइजेशन चार्जेस की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। क्या होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज अगर है, बाहर की प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलराइज मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अंदर इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा।
फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और यहाँ पे तो नेगेटिव था ही। इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको कम भी कर सकते हैं, तो डजंट मैटर। तो मैं डायग्राम को थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। ये हमारे पास था एयर कैपेसिटर। यहाँ पे अंदर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग ग्राउंडिंग के थ्रू ड्रेन कर लेते हैं। मतलब इसके बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज हम छोड़ते नहीं है। फिर जब आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो, एंड बाय द वे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स was E. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स था बिफोर इंसर्टिंग, इसको मैंने E0 बोला था, in presence of air between the plates, okay, right। और पोटेंशियल इज V। जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। मतलब स्लैब के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, राइट, which was called as EP, E polarization। फिर हमने ये भी बोला था, हमने ये लिखा था इनफैक्ट, net electric field inside the plates is E0 minus EP। माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो E तो डिक्रीज होगा ही होगा। मतलब जहां जहां पे E इंक्रीजेस लिखा है वो तो हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, करेक्ट। दूसरी चीज ये है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V, करेक्ट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, खत्म। तो this all thing we have already done during our theory classes। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करना मतलब इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना होता है, तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है। अगला क्वेश्चन, 3 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास 3 कैपेसिटर है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया है आपने। ईच कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया A/3 and separation between the plates is D, 2D and 3D, okay। The equivalent capacity of this combination is, तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला इज C is equal to A epsilon 0 by D। K होता है लेकिन यहाँ पे एयर है, बोला है एयर कैपेसिटर, तो K की वैल्यू फॉर एयर इज 1। ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब पहला कैपेसिटर का कैपेसिटी C1 होगा, उसका प्लेट एरिया A/3 है, तो A/3 इप्सिलॉन 0 by D। दूसरा कैपेसिटर, उसका भी एरिया A/3 है, इप्सिलॉन 0, लेकिन प्लेट एरिया 2D है, 2D है ऑफ कोर्स, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास A इप्सिलॉन 0 by 6D। बाय द वे मैं ऐसा करता हूँ, A इप्सिलॉन 0 by D को C बोल देता हूँ, तो इट इज इजी फॉर अस टू सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C/3, ये हो जाएगा C/6, ओके। मैं सिर्फ कैलकुलेशंस कम करना चाहता हूँ, ओके, अदरवाइज देयर इज नो रीजन। आप चाहो तो डजंट मैटर, इफ यू वांट टू कीप जस्ट A इप्सिलॉन 0 by D, क्योंकि आंसर में A इप्सिलॉन 0 by D के टर्म्स में दिया है। और C3 थर्ड कैपेसिटर का प्लेट एरिया A/3 है, इप्सिलॉन 0, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 3D है।
तो ये आ जाएगा a epsilon 0 by 9d। ओके, देयरफॉर आपको बोला है कि तीनों पैरेलल में है। आपको पता है C1 C2 C3 पैरेलल में है। C1 C2 and C3 are in parallel, therefore equivalent capacity in parallel is C1 plus C2 plus C3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है। तो you will have a epsilon 0 by 3d plus a epsilon 0 by 6d plus a epsilon 0 by 9d। तो you will have a epsilon 0 by d कॉमन 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 9। इसको सॉल्व करो, इसमें से भी आप 1 by 3 कॉमन निकाल ही सकते थे, तो 1 by 3 भी कॉमन निकाल लोगे तो ठीक है। 1 by 3 कॉमन निकालोगे तो पहले टर्म में 1, दूसरे में 1 by 2, तीसरे में 1 by 3। ओके, तो जस्ट सॉल्व दिस। 1 plus half is 3 by 2, तो ये 3 by 2 है। 3 by 2 में 1 by 3 ऐड करोगे। ओके, तो दिस इज 9 plus 1 10 by 6, 9 plus 2 11 आएगा ये। तो 9 plus 2 is 11 by 6, तो ये 11 by 6 आएगा। टोटल 11 by 6 आएगा यहाँ पे। So this is a epsilon 0 by 3d 11 by 6. So this is a 11 a epsilon 0 by 18d है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस का लेवल सिंपल है एज फार एज CET इज कंसर्न। 2016 का ये CET का क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF V। आपके पास दो आइडेंटिकल बोलना मतलब दोनों का प्लेट सेपरेशन D और एरिया ऑफ प्लेट सेम होता है, वो सीरीज में कनेक्ट कर दिए हमने। If one of the capacitors is completely filled with dielectric material of constant K, the potential difference of the other capacitor will become. अच्छा, good question. So you have something like this. यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है। So you have something like this. दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, मतलब कैपेसिटी सेम है। आपने इनको कनेक्ट कर दिया विथ a battery of EMF V। Then in the next case you are filling one of the capacitors completely with some dielectric material of constant K। Okay, so what is the potential difference of the other capacitor in this case? Easy and interesting question। तो सबसे पहले इनिशियल केस में क्या होगा, क्योंकि इनिशियल केस में दोनों का कैपेसिटी सेम था। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब दो रेजिस्टेंस सेम हो, दो कैपेसिटेंस सेम हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट एंड अक्रॉस सेकंड इज द सेम। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे पहले केस में पोटेंशियल ड्रॉप V/2 होगा, यहाँ पे भी V/2 होगा। हाफ हाफ। वाई हाफ हाफ? बिकॉज दोनों का कैपेसिटी सेम था, इसलिए इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आइडेंटिकल थे इसके लिए बेसिकली, राइट। दूसरे केस में ऐसा नहीं होगा। दूसरे केस में ऐसा क्यों नहीं होगा? तो पहले केस में क्या है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2 है। दूसरे केस में ऐसा नहीं होगा। दूसरे केस में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरे केस में अब कैपेसिटी चेंज हो चुका है।
तो ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि अब एक कैपेसिटर का कैपेसिटी K टाइम्स ऑफ C हो चुका है, दूसरे का अभी भी C है। तो यहाँ पे सेकंड केस में आप लिख सकते हो V इक्वल टू V1 प्लस V2। गुड, राइट। तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। ओके, नाउ भले ही कैपेसिटी चेंज हुआ है पहले कैपेसिटर का, इसका, लेकिन बाय चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है सीरीज में हमेशा charge on capacitor plates is the same. So the capacitance of first capacitor is Kc, but charge conservation तो apply करना पड़ेगा. So I will write the capacitance of first capacitor is Kc, okay, by law of conservation of charge. क्योंकि टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना ही चाहिए, तो यू विल राइट डाउन, आपको याद होगा C इज इक्वल टू Q बाई V, ये बेसिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, तो Q इज इक्वल टू CV, ओके, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन Q1 इक्वल टू Q2, where obviously you know Q1 is charge on the first capacitor and Q2 is the charge on second capacitor. But Q1, as you see, what is Q? What is Q? इसको लिख सकते हो आप C1 V1 इक्वल टू C2 V2, बट C1 तो अब Kc हो चुका है, तो Kc V1 इक्वल टू CV2, CC कैंसल, करेक्ट, CC कैंसल आउट हो गया आपका, तो CC कैंसल आउट होने के बाद व्हाट यू हैव रेशियो ऑफ V1 बाई V2 एज 1 बाई K, क्योंकि ये C और ये C कैंसल आउट हो चुका है, तो V1 बाई V2 इज 1 बाई K, करेक्ट, करेक्ट। नाउ इफ यू अप्लाई कंपोनेंडो, आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो पता होना चाहिए स्कूल से, इफ यू अप्लाई कंपोनेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज कंपोनेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आपको मिल गया V1 प्लस V2 बाई V2 एज 1 प्लस K बाई K। आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, पोटेंशियल ऑन द अदर, मतलब आपको V2 पूछा था, तो दे आर आस्किंग यू V2, तो वो फाइंड कर लो, V2 हो गया, क्वेश्चन खत्म, ये आ गया आपका, आपके पास V2 यहां से, व्हाट इज V2 फ्रॉम हियर, K अपॉन 1 प्लस K V1 प्लस V2, करेक्ट, बट डू यू रिमेंबर ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने V1 प्लस V2 को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V लिखा था, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 you have V2 is equal to KV upon 1 plus K, ओके, ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल का है और इंटरेस्टिंग है। ऐसा है, हमारे पास दो इक्वल कैपेसिटेंसेस थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस हमने दोनों को अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है क्योंकि दोनों का कैपेसिटी सेम है, तो ये चीज हमेशा याद रख लो, समझ लो कि जब जब रेजिस्टेंस सेम होगा, कैपेसिटेंस सेम होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, इफ दे आर इन सीरीज ऑफ कोर्स, मतलब V/2 इक्वल पोटेंशियल स्प्लिट हो जाएगा, पोटेंशियल टू इक्वल पार्ट्स में, अगर तीन होते तो तीन इक्वल पार्ट, V/3 चार होते तो V/4, दिस इज व्हाट इट इज। अब दोनों में से एक कैपेसिटर के प्लेट में आपने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद कांस्टेंट K, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप इज नो मोर सेम, तो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और दूसरे के अक्रॉस सेम नहीं होगा, बट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इज V1 प्लस V2, बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है आप अगर 2 या 200 या 2000 या 2 लाख कितने भी कैपेसिटर आप सीरीज में लगा दो,
सीरीज में जितने भी कैपेसिटर होंगे चार्ज ऑन देम इज द सेम. तो Q1 इक्वल टू Q2, बट Q1 by definition Q is C into V. तो Q1 is C1 V1, Q2 is C2 V2. But remember, C1 is now KC क्योंकि हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया था. तो KC V1 equal to C V2. CC cancel, V1 by V2 1 by K. Good. Componendo. Using componendo. V1 plus V2 by V2 is 1 plus K by K. So V2 is K times of V1 plus V2 by 1 plus K. V1 plus V2 is total potential V. So option number B. That's how you're supposed to solve this particular question. ऐसा इसको solve करना है. Okay. So this should be the approach of solving this question. Right? So one more question for today. The difference in effective capacity of two similar capacitors. So C1 equal to C2 equal to C when joined in series and then in parallel is, मतलब मैंने जब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया और जब मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 6 माइक्रोफैराड. राइट. द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज, सबसे पहले डू नॉट मेक अ मिस्टेक. आपको एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि पैरेलल में जब आप कंबाइन करते हो तो एडिशन होता है, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है. ये रेजिस्टेंस नहीं है. रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है, कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है. ओके. और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है ये C/2 होगा, इसलिए CS माइनस CP लिखना नहीं, आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उल्टा लिखना CP माइनस CS. दिस डिफरेंस इज 6 माइक्रोफैराड. ओके. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीजें बेसिक है बहुत, ये पता होना चाहिए आपको. तो दिस इज 2C माइनस C/2, 6 माइक्रोफैराड. तो 2C माइनस C/2, दो में से हाफ गया 1.5, 1.5 C/2 इक्वल टू 6, या फिर 3/2 भी लिख सकते थे बट इट्स ओके. 1.5 है तो 1.5 C इज 6 माइक्रोफैराड. ओके. राइट. तो 1 जा 4 जा, C इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड. क्वेश्चन खत्म. डन. सिंपल task. All right. Okay, so that's sufficient for today. We'll stop here and with more questions we'll continue tomorrow.